particular spot I started thinking کہ اب کچھ کرنا ہے, یہ زیادہ عرصہ ایسے گھر میں بیٹھا نہیں جائے. تو at that particular point I started, اس کا مطلب کوڈنگ مشکل نہیں ہے, مسئلہ سمجھانے کا ہے. So at that particular point جب وہ girls, جس سب سے مزے کی بات ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں ہمارے پاس کوڈنگ سیکھ رہی ہیں اور سکھا بھی اسٹارٹ ہوتی ہے. ایٹ ٹائمس آپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا بینگ فیمیل, یو اونلی نیڈ ا سپورٹ. یس, مجھے لگتا ہے اگر آپ کرتے رہے, بھلے آپ تھوڑا 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 کرتے رہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کسوے کی چال آپ چلتے رہے ہلکا ہلکا ہلکا, تو الٹیمیٹلی آپ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے آج کیا سارا فاسٹ, ساری ڈگریز ایک طرف اور یہ 45 منٹ ایک طرف. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ ویلکم ٹو کریئر. Thank you so much. Alhamdulillah. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. Okay, it's great to have you here. Okay, so can you please tell us a little about your professional journey and how you started and how you have reached this point? Okay, so I started my graduation back in 2006 اور میرا تعلق پاکستان کے ایک بہت چھوٹی ایریا سے تھا. ٹھیک ہے. اسپیسیفکلی پریسائزلی میں کہوں تو وہ ایریا جہاں پر یو کین سے کمپیوٹر سائنس اتنی انرچ نہیں تھی, لڑکیوں کا باہر نکل کے پڑھنا اٹ وازنٹ ویری کامن, اور بلکہ اٹس اے کائنڈ آف different and difficult situations at times when the girls have to move far away from their hometowns. اور یہ practices اتنی common بھی نہیں تھی. So اس ایریا کا نام لیا تھا, اور وہاں سے میں نے فاس نسٹر یونیورسٹی میں اسکالرشپ جو ہے لیا, اور الٹیمیٹلی اسکالرشپ کی بیسس پہ اٹ واز اے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ بیک ان 2006. اسکالرشپ اچیو کیا اور اس کے بعد I went to FAST کراچی کیمپس. وہاں سے میرے جرنی کا اسٹارٹ ہوا, اور آسان نہیں تھا میرے لیے انیشلی, کیونکہ سب سے پہلے جو میرے یو کین سے راستے میں کھڑے ہونے والے تھے وہ میرے پیرنٹس تھے, اماں تھیں, جنہوں نے منع کیا کہ او یہ تو نہیں جا سکتی, یہ کیسے پاسبل ہے. بٹ پھر الٹیمیٹلی جب ان کو سمجھایا گیا تو وہ مان بھی گئیں, اور پھر میں چلی بھی گئی, اینڈ آئی کمپلیٹڈ مائی 4 years degree, bachelor's in computer sciences from FAST Karachi campus in 2010. After that I got a job in one of the leading software houses in Pakistan. وہاں جاب کی, پھر تقریباً 4 to 5 years I spent in industry. After that I got married, شادی ہو گئی, and I from Lahore, جاب میں نے لاہور میں کی تقریباً 4 سے 5 سال, پھر میں پشاور چلی گئی. And when I came to پشاور, so وہاں پتہ چلا کہ وہاں پر اس ٹائم پہ انڈسٹری اتنی فلرشڈ اور انرچ نہیں تھی جیسے کہ لاہور میں تھی. So at that particular moment I joined academia. آج پشاور جوائن کیا, کچھ عرصہ وہاں پڑھایا, اور تقریباً کچھ عرصے کے بعد 2-2.5 سال کے بعد I have to came back to اسلام آباد فاسٹ آ کے دوبارہ اسلام آباد فاسٹ جوائن کیا, started my MS. یہاں پہ بڑا اچھا, مجھے یو کین سے ایک بہت اچھا کلچر, فاسٹ فیملی, بڑی اچھی سپورٹیو کوآپریٹو سب کچھ ملا. تو spent 5.5 around years over there. وہاں کچھ عرصہ انڈر گریڈ کو پڑھایا, اور وہ ایک پرٹیکولر ایسا پوائنٹ تھا ویئر آئی ایکچولی بلینڈیڈ ایکڈیمیا میں نے جو انڈسٹری کا ایکسپیرئنس تھا وہ بلینڈ کیا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ چیز کی, وہ کوڈنگ پریکٹسز جو کہ انڈسٹری میں کی تھی, جو کرائی جاتی تھی, جو میں نے خود کی, وہ بچوں تک کنوے کرنے کی کوشش کی. اور وہاں سے فاسٹ سے تقریباً اٹ واز اراؤنڈ 2019 میں I become a mom. So اس ٹائم پہ I quit fast. Reason being, جو ہمارے گھر جو بیبی گرل آئی تھی, she came around after 8 years. So she was a precious rainbow baby. تو ہمارے لیے بڑا وہ تھا کہ so I quit job. مگر جب وہ 7 months کی تھی, so at that particular spot I started thinking کہ اب کچھ کرنا ہے, یہ زیادہ عرصہ ایسے گھر میں بیٹھا نہیں جائے. So at that particular point I started a coding school. وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوا, اینڈ پھر 2023 میں
अल्लाह मियां ने एक बेटा भी दे दिया और माशाल्लाह। 2 बच्चे हो गए थे, तो अब तो वाजिब हो गया था कि भाई जो एक टिपिकल है कि भाई आपने उनका ख्याल रखना है, और दोनों बच्चे हैं और दोनों छोटे हैं। तो फिर 2024 में आई बिकम अ टेक वुमन। टेक वुमन से एक प्रोग्राम है, इट्स अ फुली फंडेड प्रोग्राम फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वहां से वापस आई। सो आई फॉर्मली स्टार्टेड राइज। इट हैज डिफरेंट स्ट्रीम्स। सो अब तक का पहुंचने का सफर ये मैंने एक शॉर्टकट स्टोरी फॉर्म में, आई होप आपको बता दिया, मेक सेंस। Oh, I think that's a wonderful journey, and I think it's been a very beautiful journey, starting very humble beginnings, but I think you've made a name for yourself besides all the challenges and all the taboos. Okay, mashallah. Can you tell us a little bit about what RISE is? Initially I started RISE as a digital coding school, ठीक है। और यहाँ पे हमने इनिशियली एक ही स्ट्रीम रखी थी, विच इज वी ऑफर कोडिंग कैंप्स टू यंग किड्स। अल्टीमेटली गोल ये था कि एकेडेमिया में जब पढ़ाया भी सही, कोडिंग को बहुत मुश्किल समझा जाता था, यू नो। और एक जो फियर था कि मैंने देखा लड़कियों में भी होता था, शायद फियर नहीं था और उसे बना दिया गया था कि भाई लड़कियां नहीं कर सकती और लड़कियां आगे नहीं आ सकती और ये काम दूसरी तरफ का है, ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं था। अपनी अंडरग्रेड को जब मैं पढ़ाती थी तो अंडरग्रेड की क्लासेस में आई मेड अ प्रैक्टिस कि एक क्लास है जिसमें अगर टोटल 4 रोज हैं तो 3 रोज लड़कों की बनाती थी और एक रोज स्पेसिफिकली लड़कियों की होती थी। अगर लड़कियां पीछे बैठी हुई थी वो लोग खींच के आगे लेके आती थी कि आगे आके बैठो, यहाँ से ये सिलसिला रहेगा ना, लड़कियों के एक अलग हुआ है, ठीक है। सो मगर फिर भी एक आप यूनिवर्सिटी की डायनेमिक्स में रहते हुए ये सारे काम आप एक लिमिट तक कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको बाउंड करती है, आप करिकुलम पे है या आप अपने डिसिप्लिन प्रैक्टिस है। सो मेरा बहुत फोकस होता था अंडरग्रेड को पढ़ाते हुए भी कि प्रोग्रामिंग को किसी तरह से इतना हलवा बना दिया जाए, इजी बना के पेश किया जाए कि वो डरे ना, खौफजदा ना, और वो आराम से आसानी से कर लें। बहुत कोशिश की मगर एक रिस्ट्रिक्शंस थी किसी हद तक। सो अल्टीमेटली हुआ ये कि जब कोडिंग स्कूल का आइडिया जहन में आया तो हमने स्टार्ट ऐसे किया कि वी स्टार्टेड कोडिंग इन अ वेरी फन एंड प्लेफुल मैनर। द फोकस इज ऑलवेज द लर्नर, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। लर्नर को सामने रखेंगे और जब कभी भी नया लर्नर आएगा सो उसके लिए एक नया कैंप प्लान बनेगा और उसकी लर्निंग नीड्स, उसकी पेस, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखा जाएगा, उसको देखकर उसका पूरा प्लान बनाया जाएगा और उसके मुताबिक उसे फिर कोड करना सिखाया जाएगा, जिसका अल्टीमेटली गोल ये होगा जब कोई चीज आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के करीब करीब होती है सो यू हैव एक्चुअली कम टू द पॉइंट जहां आपको कोड करना फिर मुश्किल नहीं लगेगा, बच्चा हंसी खुशी खेलते खेलते करेगा। और पर्सनली शुरू की क्लासेस मैं खुद ही कराती थी जब बहुत छोटे स्केल पे था सब कुछ, तो मैंने ये चीज देखी कि वो चीज जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक अंडरग्रेड का बच्चा जिसे हम महीनों लगा के करा रहे हैं अंडरग्रेड में, जब 4 या 5 साल के बच्चे को वो दे रहे हैं और उसे फन बेस पे रख के सिखा रहे हैं, तो वही वो चीज 10 से 15 मिनट में आराम से इनहेल कर रहा है और उसने कॉन्सेप्ट बना लिया। तो इसका मतलब मुझे ये चीज यहाँ पर समझ आई कि ओ इसका मतलब कोडिंग मुश्किल नहीं है, मसला समझाने का है। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जब वो 5 इयर्स की बच्ची ने वो चीज पिक कर ली और दोबारा क्विकली अप्लाई भी कर दी कॉन्सेप्ट, सो वो चीज ट्रिगर हो गई थी कि मसला यहाँ पर जो है ना वो यू कैन से कि टीचिंग प्रैक्टिसेस था। सो वी चेंज द एंटायर मॉडल, वी ब्रिंग इट टू लर्नर फोकस्ड, और the learning pedagogy or the philosophy is around fun and playful learning. Alhamdulillah, it went successful. Right now we have learners from around the globe, पाकिस्तान से बाहर से, मिडिल ईस्ट से, कनाडा, यूएस, ये सारी एरिया हम कवर करते हैं, and we have a very good retention rate. More than 60% of the learners are girls. सबसे मजे की बात है कि ज्यादातर लड़कियां हमारे पास कोडिंग सीख रही हैं और सिखा भी रही हैं. Most of the teachers are girls as well. So 70 to 80% I can say कि in my coding school the teachers are female. और मजे की बात ये कि we start with Scratch at age of 6. Scratch, programming fundamentals with Scratch, then Python application development, then we have tracks available for game development, website development, AI and machine learning.
इन सब ट्रैक्स पे लर्नर्स बड़े खुशी खुशी से काम करते हैं. एंड राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड कोडिंग विद होम स्कूलिंग पेरेंट्स एज वेल, जो कि कोडिंग को एग्जैक्टली ऐसे ही करा रहे हैं जैसे कि उनका नॉर्मली और करिकुलम है. सो एंड दे फील लाइक कि इस चीज को एडिशन सॉरी यहाँ पे एडिशन करते हुए कोडिंग को उनके करिकुलम के साथ साथ चीजों के साथ साथ दे फील लाइक उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग वो इनहैंस होती है. और हमने एक चीज और भी देखी है कि वो बच्चे या बच्चियां जो कि पाकिस्तान के देही इलाकों से उन्होंने लेट सपोज किसी ने पाइथन सीख ली होगी. सो द बेस्ट पार्ट इज सॉरी जब वो ये पर्टिकुलर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के वापस जाते हैं अपने स्कूल्स में और वो सो उनके स्कूल से बड़ा अच्छा फीडबैक आता है कि वो नॉन टेक्निकल कोर्सेज में भी बड़ा एक्सेल करें. सो और इस एरा में एआई के आई स्पेशली फील लाइक कि कोडिंग जो ना है वो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसलाइन आपको प्रोवाइड कर दी है towards a very good foundation of being a very good and healthy problem solver. So ये एक overall है. हमारे पास coding camps है, first one. Then the second stream we offer skill up programs. Skill up programs, these skill up programs are specifically designed for those individuals who don't have degrees. Design इस तरह से किया हुआ है जिनके पास degrees नहीं है, but anyone with a degree can also take it as well. और स्पेसिफिकली डिजाइन किया था उन खवातीन के लिए जो कि करियर ब्रेक पे हैं, या मैंने देखा है स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में एक अम्मा है जो बच्चों के साथ है और बच्चे हो गए और सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो अल्टीमेटली शी हैज टू टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली. उसने अपनी जिंदगी के 5-6 साल लगा दी और 5-6 साल के बाद जब वो वापस आती है तो पता चलता है एआई का टाइम आ गया है. अब वो क्या करे, जो उसने जावा सीखी थी या C++ सीखी थी वो तो अब नहीं है, सो अब क्या करना चाहिए. तो एट दैट टाइम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ये स्किल अप के काम आते हैं. दे कैन कम टू अस, दे कैन जॉइन अस एंड दे कैन earn a skill, learn a skill, and based on that they can earn in the industry, go into the industry. हमारी कोशिश होती है कि by the end of the camp we link them with some sort of connections from industry जहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अल्टीमेटली जॉब्स की फॉर्म में, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में या इंटर्नशिप्स की फॉर्म में. सो ये है ओवरऑल. यहाँ पर जो हम चीजें प्रोवाइड स्किल्स देते हैं, वी स्टार्ट विद द बेसिक डिजिटल स्किल्स, देन starting from basic digital skills, then graphic designing, then AI automations, and also हमारे पास अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसको कोई एक कस्टमाइज्ड कैंप चाहिए, जैसे कि रिसेंटली वन ऑफ द पेरेंट ज्वाइंड अस एंड दे वांटेड कि मैंने पाइथन सीखनी है, मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, मैं हूं तो डिजाइनर बट आई रियली वांटेड टू लर्न पाइथन. सो हमने पूरा कैंप डिजाइन किया उनकी लर्निंग नीड्स के मुताबिक. सो आइडिया इज वी गो विद द लर्नर फोकस्ड अप्रोच और उसके मुताबिक उनकी लर्निंग नीड्स बेस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक हम कैंप डिजाइन करते हैं. टेक वुमेन से वापस आने के बाद मैंने ये राइस का स्किल अप कैंप जो है आई लॉन्च दिस वन, और इसका पायलट मैंने इस तरह से किया कि आई टूक सम ऑफ द लर्नर्स फ्रॉम वन ऑफ द मदरसा इन रावलपिंडी. they were, some of them were 8th graders, some of them were कुछ ऐसे थे जो कि मैट्रिक किया, जिन्होंने कुछ इंटर किया, कुछ वहाँ के टीचर्स. सो एक 7-8 लोगों का एक ग्रुप बनाया और over a duration of 6 months we trained them, starting from sitting in an online class, making a Google account, and ultimately ending in full stack web developer. उनको 6 महीने लगाकर हमने डेवलपमेंट सिखाई. They made such beautiful projects और बहुत मजे की उन्होंने चीजें बनाई. और अल्टीमेटली हमने एक एग्जीबिशन रखी. एग्जीबिशन में इंडस्ट्री से कुछ लोगों को बुलाया जो एक यूके बेस्ड कंपनी थी. उन्होंने उनको इंटर्नशिप्स ऑफर की एआई ऑटोमेशन पे, एंड दे हैव वर्कड ऑन इट. सो वो बच्चे जिनका कोई फ्यूचर नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं था, और उनमें से बहुत स्कूल भी नहीं गए थे या स्कूल से यूं से भाग गए थे, हमने उनको ट्रेन किया नॉन टेक्निकल से टेक्निकल की तरफ. इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी. जो चीज फास्ट में पढ़ाते थे या कराते थे, इट्स एंटायरली डिफरेंट एंड डिफिकल्ट. उनका लर्निंग कर्व एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री के बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट था. ठीक है, आपको क्लास में खींच के भी लाना पड़ता था, लेकिन उनके कर्व भी थोड़े से करने पड़ते थे. मगर
करना अल्टीमेटली इसलिए था कि उनको एक गोल तक पहुंचाना है. एक चीज ये, फर्स्ट वन वी ऑफर कोडिंग कैंप्स, देन स्किल अप प्रोग्राम्स, एंड द थर्ड वन वी ऑफर CS ट्यूशंस, जिसका मकसद है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री में करिकुलम में रहते हुए आपको किसी भी एरिया पे सपोर्ट चाहिए 1-to-1 that is around the syllabus, any particular topic. It could be exam preparation, it could be your project preparation. So we provide that on 1-to-1 basis, CS tuitions. And the third one that is free of cost at RISE, this is mentorship. आपको CS ऑप्ट करना है, आपको डेटा साइंस की डिग्री लेनी है, आपको AI की डिग्री लेनी है, कौन सा बात चूज करना है आपने. सो ये सारी चीजें देखते हुए, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए, वी कैन provide you the options, we can help you in sorting out the entry test, universities, ये चीज है. So these are the whole offerings that we actually do at RISE. I think this is beyond amazing. Like, I don't have words, because I think you're solving so many of the problems that we've actually discussed in podcasts up till now, that people lack guidance, they don't have platforms, this is user centric, this is breaking stereotypes for women out there. So I think you guys are firstly doing an amazing job, and I hope you guys really excel. And just want to know a little bit more. So you mentioned, तो बल्कि actually ये बताएं कि what were some of the challenges that you faced while bringing, building RISE? बहुत लंबी है the list. And the best part is I often say कि जब मैं टेक्नोमेंट पे गई ना, तो वहां पे एक सवाल हमसे बहुत किया जाता था, एंड यू फील लाइक कि इंडिया टेक में हमसे आगे है, हम थोड़ा कहीं ना कहीं करीब करीब है, पीछे थोड़ा है. क्यों है ऐसा, क्यों है? तो मैंने वहां पे मैंने यही जवाब दिया. मैंने कहा आई फील लाइक कि उनकी खवातीन जो है ना, वो मतलब बहुत जिस पेस से उनके मर्द काम करें, उसी पेस से उनकी खवातीन भी काम कर रही है. और ये चीज, ये माइंडसेट हमारे यहाँ अब शायद किसी हद तक बहुत बेहतर हो गया, बट स्टिल इट नीड्स इम्प्रूवमेंट. और मसला क्या आता है? मसला आता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलती, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है. और वो सपोर्ट कहीं से भी स्टार्ट होती है, वो सपोर्ट आपके घर के एक फर्द की हाथ से स्टार्ट होती है. एट टाइम्स आपको कुछ नहीं चाहिए होता बीइंग फीमेल, यू ओनली नीड अ सपोर्ट. यस, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग अ सुपर जॉब, आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और आप वाकई बस ये 2-3 अल्फाज जो है ना, वो आपको ऊपर चढ़ा देते हैं, आप मजीद एक्सेल कर सकते हैं. बिल्कुल. सो द बेस्ट पार्ट इज के मुझे जो फील होता है कि वो पाकिस्तान में स्पेशली किसी भी औरत को आगे बढ़ने में उसका सपोर्ट सिस्टम है. आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, और उन बच्चों को देखभाल करने वाला कोई है. सो मैंने इस पॉइंट पे आकर, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसी बंदियां जिनके स्टेट फोर्स हैं, जिनको यूनिवर्सिटी में थीटियां कहते थे, ठीक है कि ये थीटी है, वो उसने करियर ब्रेक ले लिया 10 साल का, और 10 साल के बाद जब वो वापस आ रही है, स्टेप इन कर रही है, वो इतनी खौफजदा है, इतनी डरी हुई है कि मुझे कोई रखेगा भी सही, मुझे कोई लेगा भी सही, क्या मैं कर सकूंगी नहीं. ये सारे जो डाउट्स है ना, ये इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं ना कि वो एक पूरी पर्सनैलिटी को बिठा देते हैं. इस पॉइंट पे अगर आपको कोई अच्छी सपोर्ट या कोई यू कैन से एक अच्छा फ्रेंड नहीं मिलता, सो बहुत मुश्किल हो जाता है वापस खड़ा होना. मैं ये नहीं कहूंगी कि नामुमकिन है, डेफिनेटली शी कैन डू इट, मगर इन हालात में रहते हुए इट्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट. ये सिचुएशन यहाँ पे भी थी, ठीक है, इट्स नॉट इजी. मैं फास्ट को टाटा बाय बाय कह के आई हूँ, और फास्ट इज ऑलवेज क्लोजर टू आवर हार्ट. वो यूनिवर्सिटी वाली बात नहीं है, इट्स मोर लाइक अ फैमिली, ठीक है. तो आप इतने बड़े सर्कल को छोड़कर, और जहां आप लोगों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और आप मिस भी करते हैं उस चीज को, आप घर में अकेले कमरे में बैठ के अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं. और जब स्टार्टअप पे आप काम कर रहे होते हैं, जॉब पे आपके पास टाइमिंग्स होते हैं. इन स्टार्टअप यू डोंट हैव टाइम लिमिट्स. जब काम आ गया, आप 12 घंटे भी कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं. तो ये सारे चैलेंजेस मुझे लगता है सारी बंदियां फेस करती हैं, और इट्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट एज वेल, बट कंसिस्टेंसी के साथ मुझे लगता है अगर आप करते रहे, भले आप थोड़ा करते रहे, ठीक है, वो कहते हैं ना कछुए की चाल, आप चलते रहे हल्का हल्का, तो अल्टीमेटली आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं. हाँ, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड. पहली ये कहीं भी नहीं होता कि आप
सीट पे जाके बैठे और पहले दिन ऊपर से पैसों की बारिश होना शुरू हो जाए. It's not like that. बिल्कुल. ठीक है, ये भी एक समझा जाता है कि जी टेक की डिग्रीज और इतना आपको एज देती हैं कि भाई ये तो ऊपर से पैसे कर रहे हैं. नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता. एक स्किल सीख के आप फौरन आसमान पे नहीं पहुंच जाएंगे. आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. So वो कंसिस्टेंसी हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है. This is the key to success, I guess. Wonderful. So you've mentioned a tech woman. For so people out there who don't know what that is, थोड़ा सा इसको बताएंगी? जी, Tech Woman, it's a cultural exchange program, fully funded by US Department of State. और इसका मकसद अल्टीमेटली ये है कि वो उन खवातीन को मंजर आम पे लेकर आए या जो कि स्टेम की फील्ड में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि दे फील लाइक कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए दे आर सर्विंग समथिंग very different for their own countries. उनकी स्टोरी बड़ी यूनिक है and they actually want to highlight that story. ठीक है, मैंने टेक वुमेन की जब एप्लीकेशन लिखी तो मेरी स्टेट उस टाइम पे ये थी कि मेरी बेटी जो है वो मॉन्टेसरी में थी और बेटा जो था मेरा वो he was around 1 year old. ठीक है, 1 साल का था. और मैंने ये चीज टेक वुमेन की एप्लीकेशन में भी लिखी कि मेरे पास एप्लीकेशन लिखने का टाइम नहीं होता था. मैंने गाड़ी में बैठ के एप्लीकेशन लिखी है. छोटा बच्चा कार सीट में सो रहा होता था, बेटी स्कूल में होती थी और वो जो 1 घंटा होता था उसे 1 घंटे में लिखी है. अब मैं जब वहां पहुंची हूँ तो मेरी टेक वुमेन की मेंटोर ने ये बात लिखी तो मैंने मुझे 2 चीजें पसंद आई. एक चीज ये कि तुम में इतनी रेजिलियंस थी कि तुमने डटी रही और तुमने एप्लीकेशन इस स्टेट में लिखी जब लोग छोड़ देते हैं यार ये तो इजी मोड है. और दूसरी चीज ये कि जब मैंने कोडिंग स्कूल लॉन्च किया पहला तो मैंने पहली क्लास अपनी इस फॉर्म में ली कि no one was with me to take care of my kid. She was 8 months old. कि मैंने पहला ट्रायल लेना था. And you know वो आपकी बड़ी डिफरेंट फीलिंग होती है कि आप इतने अरसे के बाद दोबारा से पढ़ाना शुरू करें और आप जब पढ़ा रहे हैं ऑडियंस आपने आपके सामने 5 या 6 या 7 साल की बच्चियां बैठी हुई है. ठीक है, ट्रायल क्लास में. बिल्कुल. मैंने उसको गोद में बिठाया. मेरी गोद में थी and I took very first coding class. वो 1 घंटे की 45 मिनट्स की क्लास थी. But believe me उसके बाद मेरी फीलिंग ऐसी थी वाओ, कोई मुझसे पूछे कि मैंने आज किया क्या, सारा फास्ट, सारी डिग्रीज एक तरफ और ये 45 मिनट एक तरफ. सो मैंने ये सारी चीजें एंटायर डिग्री आई पिच एवरीथिंग इन द टेक वुमेन एप्लीकेशन. उनका फिल्टरिंग का क्राइटेरिया ये होता है कि दे हैव 6,000 applicants from around the globe. ये 2024 की बात बता रही हूँ. और they took only 100 out of it. पूरी दुनिया से उन्होंने 100 फिल्टर किए. 100 में से भी पाकिस्तान में से 5 गए. और 5 में से भी 2 खवातीन वो थी जिनका लास्ट ईयर नहीं हुआ था और वो इस ईयर जा रही थी. मतलब ठीक है, पाकिस्तान से सिर्फ 3 लोग थे 2024 में. ठीक है, जो कि उस ईयर फिल्टर आउट हुए. सो आई वाज वन ऑफ देम. ये एक कहानी थी. सो फुली फंडेड प्रोग्राम होता है. आप पाकिस्तान से यूएस जाते हैं और वहाँ जाके दे ऑफर कल्चरल मेंटोरशिप, दे ऑफर प्रोफेशनल मेंटोरशिप. प्रोफेशनल मेंटोरशिप का मतलब ये होता है कि दे यूज टू गिव यू द चांस टू हैव इंटर्नशिप इन लीडिंग टेक्स, कुड बी लिंक्डइन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब चीज़. मेरी भी एक फिनटेक में, वहाँ की सैन फ्रांसिस्को की एक फिनटेक में अपॉइंटमेंट हुई एंड आई स्पेंड 15 days over there with a mentor. ठीक है, और वो mentors भी ऐसे होते हैं, believe me, कि they are such a nice people. वो आपके इतना दिल के करीब बन जाते हैं. और मैं आपको बताती हूँ कि राइस को भी खड़ा करने में that particular mentor is behind us. Her name is Alia. वो उनकी बहुत सपोर्ट थी. टेक वुमेन से वापस आने के बाद I feel like कि मेरे बहुत से जो हिडन टैलेंट था ना और जो स्किल सेट, ये खौफ मेरे में भी था कि सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं करूंगी नहीं करूंगी, बट अब मैं कर जाती हूँ. अब मैं सोचती नहीं हूँ. सो ये सारी चीजें मुझे वहां से मिली है. ये सारे हिडन स्किल्स मुझे उनकी वजह से मिले. शी एक्चुअली दैट वाज दैट पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने पॉइंट की है ये सारी चीजें. इसके अलावा प्रोफेशनल मेंटोरशिप मिलती है आपको. आप उनके कल्चर में जाके उनके साथ काम करके देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से कर रहे हैं. व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट यू कैन ब्रिंग इन योर ओन कंट्री. फिर वो आपको सारे सिलिकॉन वैली लेके जाते हैं. वी विजिटेड गूगल, वी विजिटेड टेस्ला, और टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ये सारे बड़े बड़े नाम जितने भी हैं, आप जाते हैं वहाँ, उनको विजिट करते हैं और आप उनका कल्चर देखते हैं, उनकी खवातीन से मिलते हैं. सी मुझे जब सबसे अच्छी मजे की बात लगी, वी विजिटेड गूगल ओवर देयर, हमने देखा कि वहाँ पर
کس طرح سے بریکس ملتی ہیں خواتین کو وین دے آر آن میٹرنیٹی لیوز, اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو کیسے کیٹر کرتی ہیں. صرف ون سائڈیڈ سپورٹ نہیں ہوتی پیرنٹنگ میں, دونوں طرف سے لے کے چلتے ہیں. سو اٹس ناٹ سم تھنگ ویری ڈفرنٹ. ٹیسلا گئے, ٹیسلا میں ہم نے دیکھا کہ وی وینٹ ٹو ٹیسلا لیب جہاں ٹیسلا بن رہی تھی پوری, اور وہاں پہ ایک بھی بندہ نہیں تھا. میں اکثر مینشن کرتی ہوں دیر ور روبوٹک ہینڈ سم تھنگ لائک دس جو کہ کام کر رہے تھے, اور اٹ واز ویری ڈفرنٹ ایکسپیرینس. اینڈ ون آف دا سیلف ڈرائیونگ کار, جو نام بھول گیا, ویمو, یس دیٹ کار ایز ویل. اور ہم نے وہ بھی ایکسپیرینس کیا کہ آج تک سنا تھا کہ بھائی سیلف ڈرائیونگ کار ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, اگر جب بیٹھ کے دیکھا اٹس ڈفرنٹ ایکسپیرینس. سو یہ ساری چیزیں تھیں, یہ ساری لیے. پھر وہاں پہ دے پرووائڈ یو کلچرل مینٹورس. کلچرل مینٹورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ایس کے کلچر میں آپ کیسے رہ سکیں گے, آپ کیسے انجوائے کر سکیں گے, گھبرائیں گے نہیں, پریشان نہیں ہوں گے, ہاؤ ٹو فیس دا کلچرل شاکس. بہت سے کلچرل شاکس بھی آپ کو لگتے ہیں, یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ او امریکہ میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے, بٹ وہاں بھی ہو رہا تھا. سو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کے کلچرل مینٹورس ہوتے ہیں. پھر the best part is impact project. They offer you impact project. آپ اپنی کنٹری کی کوئی پرابلم لے کے جائیں, اس پرابلم پہ کام کریں وہاں پر, pitch in front of them, اور اگر ان کو آئیڈیا پسند آتا ہے تو they offer you you can say grant, project grant of $3,000. So ہماری ٹیم نے وہ بھی ون کیا. اور that particular project was دھانی کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں وہ ساری خواتین یا بندیاں جو کہ ہینڈی کرافٹس پہ کام کرتی ہیں, اور الٹیمیٹلی ان کو ریٹرن بیک اس طرح سے نہیں ملتا. دیر از آلویز اے مڈل مین جو کہ ان کا 80 to 90% شیئر کھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو اگر ریلی بنا رہی ہیں یا کوئی کڑھائی کر رہی ہیں تو وہ ان کو 30 to 40 روپیز پر ڈے مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک ایپ ایسی ڈیزائن کرنے کا آئیڈیا دے دیا جس میں الٹیمیٹلی 100% وہ پروفٹ جو ہے ریٹرن بیک وہ ان خواتین کو واپس ملے گا. اینڈ بیسٹ پارٹ از کہ وہ ایپ آج کل انڈر ڈیولپمنٹ ہے, ان دا ٹیسٹنگ فیز, الحمدللہ. سو ہمارا گول یہ تھا کہ ہم ان کے پروڈکٹس کو اٹھا کے سب سے پہلے ٹیکومین کی کمیونٹی کو دیں گے. سنس دا کمیونٹی از ریئلی اسٹرانگ, وہ وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. سو دیٹس اٹ. سو یہ اوور آل آئیڈیا تھا. ٹیک وومن سے واپس آنے کے بعد بھی I feel like they actually work on your core skills. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ اسکلز اچھے ہیں, آپ کے ساتھ پاس پرابلم سالونگ اسکلز اچھے ہیں, وہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے جو آپ کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, ٹیک وومن وہ نکال کے آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیتا ہے. اینڈ یو ہیو دا بیٹر چانس ٹو سرو دا کنٹری, خواتین کی سپورٹ پہ, وومن امپاورمنٹ پہ, ان سب چیزوں پہ. Oh, that's wonderful. I think not a lot of people knew about this opportunity. I didn't as well. So I think this is a good opportunity for people to actually apply and work towards building a portfolio to get shortlisted as well. I think that's wonderful. So Rise mein aapne mention kiya that you guys also focus on or you provide mentorship and guidance کہ career mein kya path choose karna hai, kaise enter karna hai. So what is some advice that you would give people who don't know what they want to do? Like for example, آپ نے فاسٹ میں بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. A lot of people have فاسٹ میں کمپیوٹر سائنس میں آتے تو ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, یا ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ یہاں پر کیوں ہیں. So what is some advice that you guys give them, or what some guidance that we can provide them کہ in helping figure out what their career path should be? اچھا, I think اس چیز پہ کیا ہوتا ہے, فرسٹ آف آل آئی فیل لائک ایک چیز جو ہے کہ دیر از ون پرٹیکولر پوائنٹ. آپ ہر انسان میں ایک ایسا ایریا ہے, ایک ایسا یو کین سے اسپارک ہے دیٹ از یونیک, ٹھیک ہے, یہ جو گاڈ گفٹڈ ہے. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از وی ہیو ٹو ہنٹ فار دیٹ پرٹیکولر تھنگ. آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہر بندہ کوڈر نہیں بن سکتا, ہر بندہ ٹیسٹنگ نہیں کر سکتا, ہر بندہ AI آٹومیشن نہیں کر سکتا. سو سب سے بہترین جو اسیسمنٹ ہوتی ہے نا, وہ انسان اپنے بارے میں خود کرتا ہے, ٹھیک ہے. یا اگر آپ کو اس میں بھی بہت ڈیفیکلٹی ہے, سو یو کین آسک پیپل اراؤنڈ. آپ کو 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں پتہ چل جائے گا اس چیز کا. سب سے پہلی چیز تو آپ کو اپنی کور کے بارے میں بتانا ہونا چاہیے کہ میرا کور اسکل کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم جو رائز پہ بیسکلی سجیسٹ کرتے ہیں کسی کو کریئر پاتھ کہ آپ اس طرف جائیں, یہ چیز آپٹ کریں. سو دیٹ از ایکچولی بیسڈ آن
देयर यू कैन होल प्रोफाइल, उनकी पूरी प्रोफाइल ली जाती है, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिए जाते हैं, उसको डिग डाउन किया जाता है फर्दर कि आप इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, ये है। ये एक तो मैंने जेनेरिक बता दिया, ठीक है, बट राइट नाउ यू नो द एरा इज ऑफ एरा ऑफ एआई, ठीक है, एआई ने चीजें उलट उलट कर दी है सब कुछ। हम आज से यू कैन से 7-8 साल पहले कहते थे वो सीएस की डिग्री कर दे, बच्चा बाहर निकलेगा तो अल्टीमेटली उसे जॉब मिल जाएगी इंडस्ट्री में, और ये अब ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। अब आपको अल्टीमेटली एआई की तरफ आना ही आना है, और किसी हद तक ये भी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज जो है उनका करिकुलम जो है दैट इज नॉट एक्चुअली अलाइंड विद बेस ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री इस टाइम चाह रही है, या इंडस्ट्री जो कहती है कि हमें अब डेवलपर से ज्यादा एक ऐसा बंदा चाहिए जो जिसको एआई के बारे में पता हो, जिसको ऑटोमेशन के बारे में पता हो, तो वो चीजें शायद यूनिवर्सिटी उस तरह से आपको ना दे रही हो। बट द पॉइंट हियर इज कि यू हैव टू स्किल अप। कंप्यूटर साइंस की डिग्री है आपके पास, आप सीएस की किसी भी अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, आइदर इज इट डेटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये सारे जितने भी हैं आप इनके अंदर आते हैं टेक में। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में करिकुलम इस तरह से अलाइन होता है कि इफ यू स्ट्रगल अ बिट, सो आप इजीली अपने आप को अलाइन कर सकते हैं टुवर्ड्स बिल्डिंग योर ओन प्रोडक्ट्स। द बेस्ट पार्ट इज कि आप तीसरे चौथे सेमेस्टर से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना शुरू कर दें, और अल्टीमेटली जब आप अपने फाइनल ईयर की तरफ आए, सो समथिंग शुड बी इन योर हैंड। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। मैं अभी टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही कि वो बनेगा कैसे, आई एम सेइंग अबाउट जस्ट आइडिया। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए जो आपको लगे वो ये आइडिया ऐसा है कि इसको मैं यूनिवर्सिटी से निकलूंगा तो मैं अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट बना सकूंगा, और मैं उसको एज अ यू कैन वर्क ऑन दैट। आप उसको लॉन्च करें, उस पर काम करें, अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, उसमें एआई डालें, उसमें कुछ भी डालें, बट जब आपकी अपनी चीज होगी ना, सो द बेस्ट पार्ट इज के जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे तो आपको उस टाइम पे जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी इस टाइम पे ग्रेजुएट हो रहे हैं या होने वाले हैं, अल्टीमेटली इस टाइम पे एंट्री लेवल वाला काम जो है वो एआई करके दे रही है। मार्केट में जॉब्स एंट्री लेवल के लिए नहीं है, कि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उनको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए या तो ये है कि आप अपना स्किल सेट बहुत ऊपर ले जाएं, आपको ऑटोमेशन और ये सब चीजें, या अल्टीमेटली यू हैव समथिंग इन योर हैंड, आप अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आपको पता हो कि मैं अपना कस्टमर कैसे लेना है, कहाँ से उठाना है, किस तरह से मार्केट बनानी है। सो ये सारी चीजें। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। बट एक और चीज़ भी तो होती है that you also sometimes need investment and some other factors in launching your own product as well, and that's something that people don't have, and a lot of things you learn from experience जब आप जॉब पर होते हो या किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हो, बिकॉज यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट भी फ़र्क होता है, राइट? सो इस गैप को किस तरह केटर किया जा सकता है? अच्छा, मैं अब आपको सीधी बात बताती हूँ। जब मैंने पहला मतलब फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड माय कोडिंग कोच स्कूल, तो मैंने उस टाइम पे उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। क्यों? I was the developer, I was the teacher, I was the activity, ग्राफिक डिजाइनिंग में खुद ही की, सारे काम खुद किए, ठीक है। वो बहुत रिफाइंड फॉर्म नहीं बना जैसे राइस था, आज राइस है, बट अगेन बहुत सी चीजें रोल आउट करके आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है, भले वो चीज फेल हो रही हो, ठीक है, बट जब आप रोल आउट एक दफा कर देते हैं, मुझे लगता है कि आपको पता चल जाता है। जैसे पता चल गया कि भाई हाँ फंडिंग की कमी थी, अब इसका मतलब ये कि ये साथ साथ फंडिंग भी ग्रैब करनी पड़ेगी। सो आई नीड टू लुक फॉर फंडिंग आइडियाज एज वेल। फंडिंग कहाँ से उठानी है, कहाँ से लेनी है, कहाँ से इन्वेस्टर पकड़ना है, ये सारी चीजें। सो मुझे ये लगता है मेरी अपनी जो एक असेसमेंट है वो ये कि कंप्यूटर साइंस जैसे फास्ट की कंप्यूटर साइंस की डिग्री की बात उठा लेती है, तो ये बच्चा इतना इक्विप्ड होता है कि उसको मुझे लगता है कि वो खुद से अपना काम स्टार्ट कर सकता है, उसको शायद पैसों की जरूरत नहीं होती। बट स्टेटमेंट है, बट ये मैंने किया है, बिल्कुल ठीक है, मैंने ये किया है ये चीज, इसलिए मैं कह रही हूँ। एंड आई नो, मैं बहुत से अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे को जानती हूँ जिन्होंने जॉब्स नहीं की, उन्होंने अपने एफआईपी किया, पता चल गया 4-5 लोगों का ग्रुप था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था, उन 4-5 लोगों ने अपनी कंपनी बना ली, ठीक है, और दे आर वर्किंग ऑन देयर आइडियाज, देयर आर मेनी नेम्स अवेलेबल। सो ये पॉसिबल है। आप जब ग्रुप में काम करते हैं, यू नो,
कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितने मसले मसाइल होते हैं, जी एक ग्रुप ऐसा बन जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी अलाइनमेंट हो जाती है, तो आपकी अलाइनमेंट सेट हो गई, यू नीड गुड पीपल फॉर योर कंपनी, हाँ सो हियर यू आर, हियर यू गो, आप कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट. डेफिनेटली कुछ जगहों पे आपको फंडिंग रिक्वायर्ड होती है, बट जैसे जैसे आपको पता चलना शुरू होता है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज पे भी काम कर सकते हैं. ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि आप बहुत सी एग्जाम्पल सामने आ रही हैं पाकिस्तान में कि जिन्होंने फंडिंग ग्रैब कर ली बाहर की, वो बच्चा हमारा था, प्लान एआई टूल बना रहा था. तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं. पॉइंट इज, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज को लेके चलनी है, आपको उस आइडिया पे काम करना है जस्ट टू बी सक्सेसफुल. जॉब्स वाला वो सीन नहीं है जो कि आज से 7-8 साल पहले थे. आई थिंक इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्ली लैक कॉन्फिडेंस दैट हम ये कर सकते हैं, दैट हम वाकई इस प्रोडक्ट को लेकर एक कुछ बड़ी चीज़ बना सकते हैं या हम कुछ सेटअप कर सकते हैं. मे बी थ्रू योर एग्जाम्पल और अदर एग्जाम्पल्स दे माइट गेट सम कॉन्फिडेंस दैट नो दिस इज पॉसिबल बिकॉज if hopefully it is actually. So yeah, that's another interesting point. एक और बात बताएं कि so you have worked in FAST as well, which is like a traditional education system, and you also run RISE. आपका क्या ख्याल है ट्रेडिशनल जो एजुकेशनल सिस्टम है अभी का, हाउ इफेक्टिव इज इट इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड? अच्छा, ये बड़ी बीच की सिचुएशन में, ना इसको कुछ कह सकते हैं ना उसको. अच्छा, खैर द पॉइंट इज कि यहाँ पे ना एक और चीज भी आती है. अक्सर लोग इस टाइम पे इस तरह से फोकस्ड होते हैं कि वो एक ये माइंडसेट भी आ गया ना, आप डिग्रीज ना करें और आप स्किल्स ले लें सिर्फ. ठीक है. तो मैंने ना यहाँ पे एक चीज जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया, वो लोग जिनके पास डिग्रीज नहीं है, मैं इस तरह से इसको लेके चलती हूँ, वो लोग जिनके पास डिग्रीज नहीं है और वो अल्टीमेटली आते हैं, आपके पास स्किल सेट लेते हैं और लेके चले जाते हैं. बट उनकी स्किल सेट के साथ ना वो प्रोफेशनल एथिक्स जो फास्ट में या किसी यूनिवर्सिटी में, बार बार फास्ट का नाम आ रहा है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जो कि रगड़ा लगकर पहले सेमेस्टर से आखिरी सेमेस्टर तक बच्चा रगड़ा लगकर जो चीजें सीखता है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टाइमलाइंस को कैसे मैनेज करना है. एक मिड आया, दूसरा मिड आया, बीच में 4 असाइनमेंट्स आ गए, प्रोजेक्ट भी आ गया, इन सब चीजों को कैसे लाइन करना है. ठीक है, जिंदा कैसे रहना है इस सारी सिचुएशन में. बेस्ट पॉइंट इज, ठीक है, सर्वाइव कैसे करना है. और ये चीज फिर उसके बाद आपने प्रोफेशनली बिहेव कैसे करना है. आपको अगर टाइम दिया है कि आपने इस टाइम पर 5 बजे अवेलेबल होना है एंड यू हैव टू बी, आप नहीं हो रहे, आप ऑफलाइन हो गए, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा आप पर, आपके मुल्क पर. मैं ये भी कहूंगी, ठीक है, ना सिर्फ आप पर, आपके मुल्क पर. आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ अलाइंड है, आपके पास स्किल सेट है, सब कुछ है, बट हाँ आपसे काम नहीं हुआ तो आपने इंटरनेट भी ऑफ कर दिया, सब कुछ ऑफ कर दिया. ये सारे एथिक्स यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है. ठीक है, ये आपको यूनिवर्सिटी मुफ्त में सिखा देती है. मुफ्त में सिखा देती है. ये सारी चीजें हम ऐसे सीखे, हमें किसी ने नहीं बताई, अगर हम ये सीख गए साथ साथ. सो द पॉइंट इज के यूनिवर्सिटी में जाना और वहां से एजुकेशन लेना, ऑल्दो वहां पर आज भी चीजें थोड़ी पुराने तर्ज अमल पे चल रही हैं, कुछ चीजें हैं जो कि हम कहें हाँ करिकुलम इंडस्ट्री के साथ अलाइन नहीं है, ये सारी चीजें हैं, मसले मसाइल, बट अगेन वो फायदेमंद है. अब आते हैं राइज और इस चीज के कंपैरिजन पे. डेफिनेटली यहाँ पर जब आप 1-to-1 किसी से इंटरेक्शन करते हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो आउटकम्स आर रियली डिफरेंट. इसकी एग्जांपल देती हूँ. यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे टीचर्स मिलते थे हमें, हेलो हाय सबसे होती थी, मगर एक ऐसा होता था जिससे आपके तार बन जाते थे और आपको वो ताहयात याद रहता है, वो उसने मेरा बहुत ख्याल किया. ठीक है, अब वो कुछ भी कहेगा ना, आप आंखें बंद करके मनोमन उसकी बात मानेंगे कि यार ये उस्ताद बहुत अच्छा है, ये टीचर बहुत अच्छा है. सो हम राइज में इस फॉर्मूले पे काम करते हैं. वी एक्चुअली ट्राइड टू मेक दैट पर्टिकुलर ब्रिज, ठीक है, बिटवीन टीचर एंड लर्नर. वो ब्रिज बन गया. अब उस ब्रिज पे आप कुछ भी सप्लाई करें ना, वो बच्चा ले लेगा. ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये मॉडल अगर यूनिवर्सिटीज फॉलो करें, जो कि डिफिकल्ट होता है, वहाँ 60 की स्ट्रेंथ है, हमने खुद पढ़ाया है, लैब कराई है पास में, 60-70 बच्चा बैठा हुआ होता था और उस 60-70 को आपने कोड करना सिखाना था, तो वहां खड़े होते थे और पीछे तक आवाज जा रही होती थी. आवाज का भी टेस्ट होता था और आपके कोडिंग स्किल्स का तो होता था, टीचिंग का अलग, पेशेंस का भी. हाँ, पेशेंस का भी डेफिनेटली.
تو یہ ساری چیزیں. پھر the best part is کہ جو لرننگ پیڈاگوجی دیٹ از اراؤنڈ لرنر سینٹرک فن اینڈ پلے فل ہے نا, وہ سب سے مزے کی چیز ہے یہاں پر کہ بچہ بہت ہنسی خوشی کھیلتے کھیلتے سیکھ جاتا ہے, اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی برڈن نہیں ہے. ہمیں ہمارے ٹائم پہ ہم نے پریشر لے کے سیکھا ہے, بٹ اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ آپ زیادہ نہیں ڈال سکتے. سو آئی تھنک کہ دس از بیسٹ اگر یونیورسٹیز اس کو اڈاپٹ کریں. اچھا باہر کی یونیورسٹیز کرتی بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہاں یہ چیز چلتی بھی ہے, یہ ماڈل چلتا بھی ہے ورڈ بائی ورڈ. ابھی ریسنٹلی میری بات ہو رہی تھی ایک جگہ پر, تو یہ پتا چلا کہ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا, وہاں پہ وہ لوگ یو ایس میں وہ لوگ 1-to-1 مینٹورشپ پرووائڈ کرتے ہیں, ٹیوشنس دیتے ہیں اپنے بچوں کو, نہیں سمجھ آ رہی کسی کو کلاس میں. سو یہ ہے اوور آل. آئی ہوپ میں نے کسی حد تک کلیریفائی کی تھی. میں یونیورسٹیز کے اگینسٹ نہیں ہوں, جو یونیورسٹیز دیتی ہیں وہ آپ ایک سنگل اسکل سیٹ میں کیمپ لے کے نہیں کور کر سکتے. ڈگری کی اپنی امپورٹینس ہے, بٹ الٹیمیٹلی جو اسکلز ہیں اور 1-to-1 فوکس ہے, دیٹ از ایکچولی مور ہیلپ فل فار دا لرنر. جو لرنر سینٹرک اپروچ ہے جہاں آپ کو گائیڈنس زیادہ ملتی ہے, مینٹورشپ ملتی ہے, سو وہ چیز آپ کو بھولتی نہیں ہے, پھر وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. دیٹ از ایکچولی کور لرننگ. بالکل بالکل. So, are there any internship opportunities in RISE, especially for fresh graduates, یا پھر even students جو کہ یونیورسٹی میں ہو but they somehow want to contribute, ایسی کوئی opportunity ہوتی ہے؟ Yes, in summers we offer internships جہاں پر کچھ جیسے آپ کے 3rd-4th سیمسٹر کے بچے ہیں, کمپیوٹر سائنس کی ڈگری میں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے یا ٹیک کی فیلڈ میں ہیں, and they want to upskill them, مطلب انہیں پائتھن نہیں آتی, وہ پائتھن سیکھنا چاہتے ہیں. سو ایٹ پرٹیکولر ٹائم وہ ہمارے کو پائتھن کا کیمپ جوائن کر سکتے ہیں, اسکروٹنائز کرتے ہیں تھوڑا سا, اس کا پروسیس ہے. And once they clear that particular process, پھر اس کے بعد ہم we can take them as a TA or TA in the class on internship. اچھا, اور اس کے علاوہ we also offer you can say employment opportunities to the students who are in their final years. Final year کے بچے کو you can say پوری جو ہے اس کا ٹیک جو اسٹیک ہے وہ پورا ہو جاتا ہے, اس نے جتنا سیکھنا ہوتا ہے سیکھ لیا تھا. ناؤ he's in the phase to apply things in the final year project. So ہم ایسے بچوں کو we can take after going through you can say تھوڑا جو اسکروٹنائزیشن کا پروسیس ہے اور جو انٹرویوز کا پروسیس ہے تھوڑا سا لمبا ہے, وہ کر کے کلیئر کر کے we can take them as a coding teacher at RISE. اچھا, we try to pay industry competitive salaries, ہماری کوشش ہوتی ہے. We hire them on part time, تو ان کو اسی ٹائم پہ جتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اتنا ٹائم ہی انویسٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر جو میجر فوکس ہوتا ہے, ہم نہ صرف the idea is we try to hunt not only coders, تو ہونا آپ کو پتا ہے اس ٹائم پہ مشکل بات نہیں ہے. The best thing is you must be a very good teacher, you have a very good communication skills. آپ ہنسی خوشی کھیل کھیل کے چہرے پہ اسمائل رکھ کر اور آپ بچوں کو کوڈ کرنا, کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ لگانا سکھائیں. سو دس از دا مین ٹرک. اور دوسری چیز یہ کہ نہ صرف کوڈ کرنا سکھائیں بلکہ اس کوڈ کو ریئل ورلڈ سے سنک کیسے کرنا ہے, ریئل ورلڈ کے ساتھ لنک کیسے کرنا ہے. دس از دا مین آئیڈیا. Okay, okay, that's interesting and that's great. Okay. آپ کے خیال میں how do you think teaching methods they need to evolve or have evolved in this AI driven time? Can you please repeat? آج کل how do you think teaching methods evolve کر گئے ہیں یا پھر ان کو ضرورت ہے evolve کرنے کی based on the development in AI? I think they have evolved. مطلب میں نے this is the second startup right now I'm working. The other one, the Wipro Coder, was the baby. اور پھر baby ultimately جو you can say a bigger one, RISE is the bigger one. ٹھیک ہے, alive as well. So میرا جتنا یہاں پر ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ جب ہم نے وپرو پہ کام کیا تھا, سو اس ٹائم پہ وی ور ورکنگ آن مینوئل تھنگس. ٹھیک ہے, آپ ہر چیز کریکولم اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہوں, ہر چیز اپنے ہاتھ سے کر رہی ہوں, پوسٹر اپنے. ناؤ ایٹ رائز وی ٹرائی ٹو برنگ AI آٹومیشن. ٹھیک ہے, ہم بہت سے ورک فلوز اور بہت سی چیزیں جو ہم مینوئل کر رہے تھے وہ ہم نے یہاں AI پہ لے آئے. ایک چیز یہ, اور ٹیچرس کو بھی سپورٹ پہ رکھا ہوا ہے. ایگزامپل کے طور پہ دیتی ہوں, جیسے کہ ایک ٹیچر ہے, اس نے وہ لرنر کی پروفائل اسیس کر رہا ہے آن ڈیلی بیسس.
डेली बेसिस पे उसे लर्नर से एक पर्टिकुलर को इनपुट मिलती है कि आज उसने ये किया, आज उसने वो किया, आज उसने किया. सो वी प्रोवाइड देम विद द एआई टूल्स. वो उसमें उसकी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं बैकएंड पे, और अल्टीमेटली टीचर को एक बेहतर सजेशंस मिलती हैं. ओ, इसका एरिया ऑफ डिफिकल्टी ये है, इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, इसको यहाँ काम करना चाहिए, यहाँ का. सो एआई बड़ी सपोर्ट दे रहा है ओवरऑल इस सारी चीज में. टीचर के एंड पे सपोर्ट है. बट द बेस्ट पार्ट इज कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एआई नहीं दे सकता. दैट इज मेंटोरशिप. तो वो मेंटोरशिप आप टीचर को ही देनी है, वो उसके अंदर होगी तो वो प्रोवाइड करेगा. सो दैट्स माय पॉइंट के द बेस्ट पार्ट कि हम इसी तरह के टीचर्स को मैं अपने पास रखती हूँ या हम हायर करते हैं, एंड वी ट्रेन देम एज वेल. टीचर्स को ट्रेन करते हैं टू हैव लाइक प्रोवाइड वन टू वन कनेक्शंस, मेंटोरशिप्स, ताकि आप उनके कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम कर सकें. ओके, सो एक और बात बताएं दैट अब कोडिंग कोई भी कर सकता है. Someone from a non-tech background as well, with vibe coding, they can build a website, they can make an application. So do you think it's still important to learn those basic coding skills, या फिर अब फायदा नहीं रहा? आई थिंक अगर आप देखें ना, एआई ऊपर क्लियर है और कोडिंग बहुत नीचे क्लियर है. सो मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ. अभी रिसेंटली हमने कुछ कैंप्स कराए जिसमें वी वर टीचिंग एआई ऑटोमेशन to non-tech learners, or the learner was 47 years old. Oh wow, mashallah. ठीक है, one of the learner was 47 and other one was 42 years old. ठीक है, तो 40 से ऊपर की नहीं दोनों. अब उनको जब AI automation सिखानी ना on NATN, that is a non-coding platform, आप बगैर कोड के automations बना सकते हैं, and it's very frequently used in the world. So हमने जब उनको सिखाना शुरू किया ना, so being a computer scientist, we try to align the curriculum considering a non-technical background. But उनको शुरू के 4-5 घंटे में हमने वो चीजें सिखाई जो हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री में का बच्चा पहले 2 सेमेस्टर्स में सीखता है. ओके. जैसे कि डेटा टाइप्स, जैसे कि स्ट्रिंग्स क्या है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स क्या है. ठीक है, ये सारी चीजें. तो मुझे वहां पर समझ आई कि आप नॉन कोडिंग कहते जरूर है, ठीक है, आप नॉन, बट यू मेक श्योर कि आपको इन चीजों का आइडिया हो या आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है. ठीक है. सो मेरा एक कहने का कहीं ना कहीं ये भी मकसद है कि आपको जितना फ्लेवर इन चीज का पता होता है, सो आपकी अंडरलाइंग बेस स्ट्रांग होती है फॉर बिल्डिंग रियल एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स. अब बच्चों के साथ जब हम उनको कोडिंग सिखाते हैं, सो द बेस्ट पार्ट इज कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ टूल, आप उनकी एक दफा कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, सो कल को एआई की कितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस आए, कितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए, कितना भी कुछ आए, सो द पॉइंट इज टू मेक देम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, बेस्ट थिंकर्स एंड रेजिलिएंट. आई एम यूजिंग द वर्ड रेजिलिएंट. एक चीज होती है कि यू नो ये सबके साथ होता है, जो भी सीएस की डिग्रीज में या कोडर्स है, हमारे साथ होता था कि जब एरर आता था ना तो दिल दहल जाता था, क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें. ठीक है, सो आपको इस जगह पर जब एरर आया है, तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र के साथ, क्योंकि 80% ऑफ द सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन योर एरर मैसेज. उसके एरर में आपको आपका सोल्यूशन मौजूद है, बस आपने तसल्ली से घबराए बगैर अगर उसको पढ़ लिया, समझ लिया, सो यू आर एक्चुअली बिल्डिंग रेजिलियंस. ठीक है, सो अगर आपकी ये लेयर पक्की हो जाती है ना, आई फील लाइक यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर रेजिलिएंट पर्सन, यू आर इनोवेटर. सो यू एआई क्या कुछ भी आ जाए, फिर आपको कुछ मसला नहीं होगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि ये वो स्किल्स हैं, दीज आर द कोर स्किल्स जिस पे हम काम करते हैं अपने कोडिंग कैंप्स में. आई फील लाइक कि अगर आपके पास ये स्किल सेट हो ना, तो टेक तो एक साइड पे. इफ यू आर हाउसवाइफ, if you are a woman who are struggling with XYZ issues, आप ऑफिस में कहीं बैठे हैं, कोई मसले मसाइल हैं, सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ये रेजिलियंस आपकी वहां भी काम आती है जब आपको ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम बैठना है 5 बजे के बाद. ठीक है, सो इफ यू आर अ रेजिलिएंट पर्सन, सो आई थिंक कि ये आपका कोर स्किल्स जो है ना, ये आपके वहां भी आपको सपोर्ट करते हैं. मुझे तो किया है. बिल्कुल. सो दैट्स इट. यस. Okay, wonderful. अच्छा, I'm quickly going to head over to a rapid fire. आपसे मैं 2 options लूँगी. You can just select one out of them. ठीक है? Okay.
Degree or skills? Degree. GP or experience? Experience. Job or startup? Startup. Learn alone or learn in community? Community. Comfort zone or risk? Risk. AI in exams, inevitable or unacceptable? Inevitable. Okay. Degree value, rising or declining? Sorry. Degree value, rising or declining? I think it's declining. Yes. Skills or credentials, what wins now? Skills. Self learning or structured learning? Structured learning. Discipline or motivation? Both. Fair enough. Okay. Just some one word ones as well. So, one skill every student must learn today. AI automation. One thing students should stop doing immediately. Being inconsistent. Okay. Biggest myth about careers. Lots of money in the start. One advice to your younger self. Sorry. One advice to your younger self. Mm, work hard, move. Oh, really? Yes. Okay. Define success in one line. Consistent. Being consistent. Being consistent. Okay, that's wonderful. It's been such lovely talking to you. We've extracted such great insights. I want to leave the floor open to you to give some ending remarks and some advice for people out there who are watching this, for fresh graduates or people who are just looking to get back into the industry, whether it's fresh graduates or people coming from a break. What do you have to say to them? First of all, thank you so much for having me, Mr. Mazaya. Your questions are really good, interesting. Um, the best advice from my heart is everyone is unique. Everyone has some different, you can say, sparks. You just need to find out and work on it. AI का टाइम है. बहुत सी ऐसी चीजें हैं. It's not about coding. Coding पीछे रह गई है, but it's about grooming yourself. So you have the platform, you have the tools available. I think the best part is to be consistent with your sparks and use the AI to further polish them. Wonderful, wonderful. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. Jazakallah. I really liked it. Likewise. Thank you. Thank you.